محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے جلدی جس چیز کا ثواب پہنچتا ہے وہ نیکی کرنا اور رشتہ داری نبھانا ہے، اور سب سے جلدی جن کا عذاب آتا ہے وہ بغاوت اور رشتہ داری توڑنا ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخے پر۔ نیو دہلی کے ایڈی تحقیقات میں BRO سے ملتی کویتا اپنے شوہر انیل و سینئر ایڈوکیٹ سوما بھرت کمار کے ہمراہ بھی حاضر۔ غیر موسمی بارش کے سبب متاثرہ فصلوں کو نقصان کی پابجائی کی جائے۔ پتنگل منڈل سنٹینی میں جوار کی فصل کا TPCC چیف ریونت ریڈی نے لیا جائزہ۔ ناندیڑ میں اس ماہ کی 26 تاریخ کو CM KCR کے جلسہ عام کے پیش نظر PUC چیئرمین آربن MLA جیون ریڈی ہوئے مصروف۔ ناندیڑ سے تعلق رکھنے والے پرجا تنتر قائدین کے ساتھ منعقدہ اجلاس میں بودھن MLA شکیل احمد نے کی شرکت۔ مقفل کیے گئے مکان میں داخل ہو کر 15 تولے سونے کے زیورات و 30,000 نقد رقم سرقہ کرنے کے واقعے کا پولیس ملازمین نے کلوز ٹیم ڈاگ اسکواڈ کی مدد سے مقدمے کی تفتیش۔ باوقار خواتین کی عالمی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارت اسٹار نکھت زرین کا جیت کا سلسلہ جاری ہے۔ بالمقابل آنے والے باکسر کو کراری شکست دینے والی نکھت زرین کوارٹر مقابلے میں ہوئی داخل۔ شہر کے گنج و آچن پلی میں 40 دنوں تک روزانہ صبح فجر کی نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے والے بچوں کو بودھن رکن اسمبلی شکیل احمد کے شریک حیات محترمہ عائشہ فاطمہ نے عائشہ فاؤنڈیشن کی جانب سے 81 سائیکلوں کی فراہمی عمل میں لائی۔ ضلع نظام آباد میں اقلیتی امیدواروں کو سامانحی مدت کے پیشہ وارانہ روزگار سے مربوط کورسز کے لیے درخواستیں مطلوب۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیلی جانب۔ سخت محنتی کامیابی کا ضامن، ہر وقت کانگریس کی دل و جان سے خدمت کرنے والے نوجوان قائد عزیز انصاری کی کارکردگی پر TPCC صدر ریونت ریڈی نے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترا کے دوران ان سے ملاقات کرتے ہوئے کی ستائش۔ شہر نظام آباد میں کانگریس کے نوجوان ابھرتے ہوئے قائد عزیز انصاری، انہوں نے گزشتہ 2 تا 3 سالوں میں سب سے زیادہ نوجوانوں کو کانگریس میں جوائن کروایا، جس کے مد نظر ان کی خدمات کو قبل میں راہل گاندھی نے بھی ستائش کی تھی، اور اب ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترا کے دوران TPCC صدر ریونت ریڈی نے بھی ان کی اس کارکردگی کی ستائش کرتے ہوئے انہیں اپنے ہاتھوں سے پارٹی کھنڈوا پہناتے ہوئے مستقبل میں اسی طرح ان کی خدمات کانگریس کے لیے جاری رکھتے ہوئے پارٹی مضبوط کرنے کے لیے ہدایت دی۔ اس موقع پر انہوں نے TPCC نائب صدر جناب طاہر بن ہمدان، سابق وزیر سدرشن ریڈی، مہیش کمار گوڈ، مانالا موہن ریڈی، کیشو وینو، عبود بن ہمدان و دیگر سے ہمت افزائی کرنے اور رہنمائی کرنے کے لیے اظہار تشکر پیش کیا۔ تلنگانہ جمیعت الحفاظ ویلفیئر سوسائٹی کا آمد رمضان پر خصوصی ماہانہ تقسیم راشن پروگرام۔ صدر تلنگانہ جمیعت الحفاظ ویلفیئر سوسائٹی حافظ سید واجد نواز نے آج میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 2018 میں مولانا سید ولی اللہ قاسمی کی سرپرستی میں قوم و ملت کی خدمت کے جذبے سے الحق کا نام لے کر سوسائٹی نے مختصر کام کا آغاز کیا۔ اس تنظیم نے بے سر و سامانی کے عالم میں محض خدمت گزاران دین و ملت کے معاشی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بساط بھر کوشش وسیع کر کے چند بندگان خدا کو توجہ دلا کر کام شروع کیا، لیکن الحمدللہ آج سوسائٹی کے قیام کو 4 سال مکمل ہونے آ رہے ہیں۔ تاحال لاکھوں روپے کے بجٹ سے استقامت کے ساتھ ہر ماہ تقسیم راشن کا پروگرام منعقد ہوتا آ رہا ہے۔ شہر کے اکابر علماء کرام و دیگر معززین، شہر سیاسی سماجی قائدین نے اس کام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دعاؤں سے نوازا، جس کے نتیجے میں الحمدللہ ہر ماہ کے اولین تاریخوں میں خطی رقم سے سامان خوردنوش غربا و ضرورت مندوں تک پوری تحقیق اور رازداری کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے۔
जिसकी सदारत मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमीयत उलमा ज़िले निज़ामाबाद ने की। मौलाना इस्माइल आरिफी, मोहम्मद अफजलुद्दीन MBM व दीगर मेहमानों ने शिरकत की। हाफिज आमिर, नायब सदर सोसाइटी ने जुमला माविनीन का शुक्रिया अदा किया। हाफिज वसीम खान, जनरल सेक्रेटरी, हाफिज नदीम, हाफिज नईम, हाफिज आसिफ, हाफिज सैयद यूनुस, हाफिज इब्राहिम, मौलवी नईम व कारकुनान शरीक थे। अल्हम्दुलिल्लाह, तेलंगाना जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी गुज़िश्ता 4 साल से मुसलसल पाबंदी के साथ ये तक़सीम राशन का प्रोग्राम करती आ रही है और अभी भी आज हम लोग हमारे हज़रत मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब की सदारत में बतौर मेहमान ख़ुसूसी हमारे नायब सदर जनाब आमिर साहब हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हुए हैं, जनाब अफजलुद्दीन साहब और दीगर अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं। ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है ख़ुसूसी तौर पर रमज़ान की आमद से पहले पहले मुस्तहिक़ीन तक, और जो टारगेट है हमारा वो दीनी खुद्दाम हैं, तो उनके घरों तक किसी भी किस्म की परेशानी के बगैर ये 1 महीने का सामान हर महीना वैसे पहुंचाया जाता है, लेकिन रमज़ान से पहले बतौर ख़ास इजाफा करके 70 अफराद तक ये सामान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रब्बे ताला इस काम को कबूल फरमाए और हमारे जो माविरीन हैं अल्लाह ताला उनको बेहतरीन बदला और जज़ाए खैर अता फरमाए। जो खिदमतें ये छोटे छोटे तौर पर छुपा कर लोगों को बताए बगैर, मुस्तहिक़ीन को सामने लाए बगैर ये काम किया जा रहा है, अल्लाह ताला इस काम को कबूल फरमाए, इखलास और इस्तिक़ामत हम सबको नसीब फरमाए। हम गुजारिश करते हैं अपने तमाम ही मुआविरीन से कि आप अपने ताउन को मज़ीद जारी रखें और अल्लाह ताला आपके माल दौलत के अंदर भी बरकत अता फरमाए, जान व माल के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ा काम है खिदमत खल्क़, और इसमें भी बतौर ख़ास जो दीन से वाबस्ता अफराद हैं उनके घरों तक इस सामान को पहुंचाने का काम और पूरी राजदारी के साथ। वैसे तो तंजीमें और सोसाइटियां बहुत काम करती हैं, लेकिन इस तंजीम का खुसूसियत यही है कि ये पूरी राजदारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करती आ रही है। अल्लाह ताला मज़ीद इस काम को बढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हम तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, और चूँकि हज़रत मौलाना सैयद वलीउल्लाह क़ासिमी साहब अलैहि रहमा जिनके ईमा और उनके हुक्म पर ही ये तेलंगाना जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ एक दूसरे अज़ाइम लेकर के सामने आई थी, लेकिन हज़रत मौलाना ने इधर रुख फेरा और उनको ये काम बतलाया कि ये काम करने का है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग उसी को अपना मेयार बनाकर, उसी को अपना मकसद बना करके ये काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला काम करने वालों को भी और ताउन करने वालों को भी बेहद कबूल फरमाए। रमजान मुबारक व उगादी त्यौहार के ज़िमन में इंतजामात के ताल्लुक से बोधन प्रिंसिपल शकील आमिर का तमामी म्यूनसिपल ओहदेदारों के हमरा वीडियो इजलास। आज बतारीख 20 मार्च 2023 MLA जनाब शकील आमिर साहब ने म्यूनसिपल कमिश्नर, डिप्टी EE, AS, सैनिटरी इंस्पेक्टर, सैनिटरी जवान, ड्राइवर्स के हमरा एक ज़ूम मीटिंग का इनेकाद मिलाया, जो उगादी त्यौहार और रमजान मुबारक के ज़िमन में इंतजामात और पानी की सरबराही और सैनिटेशन के बेहतर से बेहतर इंतजामात के लिए ज़ूम मीटिंग रखी गई है, जिसको मुताल्लिक़ा अहदेदारों ने तयक़ुन दिया कि MLA साहब की हिदायत पर मुनासिब अमलावरी की जाएगी और अवाम को बेहतर सहूलियात पहुँचाई जाएगी। ITCEL के चेयरमैन मदन मोहन राव की कामारेड्डी जिले हेडक्वार्टर में कांग्रेस पार्टी के इनकी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वजीर शब्बीर अली ने कल कहा कि वो गांधारी में इलारेड्डी और कामारेड्डी हलकों को देखेंगे गलत है। वरंगल सभा में राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ इन लोगों को टिकट दिया जाएगा जिन्होंने सख्त मेहनत की है। वो ऐसी बातें कहकर कारकुनों को कंफ्यूज कर रहे हैं। शब्बीर अली को MLA टिकट मुंतखब करने का कोई इख्तियार नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ इन लोगों को टिकट दिया जाएगा जो गरीबों और पार्टी के लिए मेहनत करते हैं। मेरिट की बुनियाद पर टिकट दिए जाएंगे। शब्बीर अली ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाब लड़ा और कामारेड्डी और इलारेड्डी में 7 बार हारे। 40 साल सियासी कैरियर रखने वाले शब्बीर अली अपने बेटे के पार्टी इलेक्शन नहीं जीत सके। शब्बीर अली को कामारेड्डी में जीतना चाहिए और इलारेड्डी में बोलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी किसी की नहीं होती, लेकिन मेहनत करने वालों को टिकट मिलता है। कारकुनों को कल के तबसरों से मायूस नहीं होना चाहिए। अगर लोग मदन मोहन को लीडर के तौर पर नहीं चाहते तो कांग्रेस पार्टी एक कारकुन होंगे। शब्बीर अली कम से कम इल्म के बगैर बात नहीं करते। शब्बीर अली CZWL नहीं, TPCC के सदर नहीं। शब्बीर अली को टिकट पर बात करने का कोई हक नहीं। AICC के हुक्म के मुताबिक मैं MLA इलेक्शन में इलारेड्डी से मुकाबला करूंगा। कांग्रेस पार्टी कारकुनों के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था। 3 बार हारने वालों को टिकट न देने की कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी है। ఎవరైతే కార్మికుల కొరకు ఎవరైతే
ఫార్మర్స్ గురించి, రైతుల గురించి, ఎవరైతే యువకుల గురించి, ఎవరైతే పేదవాళ్ళ వర్గాల గురించి, మైనారిటీస్ గురించి, ఎస్టీస్ గురించి, బీసీస్ గురించి ఎవరి గురించి అయితే కొట్లాడతారో ప్రజల్లో ఉండే వాళ్ళకే టికెట్లు ఇస్తా అని చెప్పి రాహుల్ గాంధీ గారు స్వయంగా చెప్పడం జరిగింది. అది కూడా మెరిట్ బేసిస్, అంటే సర్వే ప్రకారము. నిన్న మీటింగ్లో షబ్బీర్ అలీ గారు బాధ్యత తీసుకుంటారు ఎల్లారెడ్డి టికెట్ అని చెప్పడం జరిగింది. అసలు షబ్బీర్ అలీ అనే వ్యక్తికి ఎల్లారెడ్డితో సంబంధం ఏంటి? అసలు ఏ పొజిషన్లో షబ్బీర్ అలీ గారు, నేను అడుగుతున్నాను, నువ్వు ఏ అధికారంతో నువ్వు టికెట్ ఇస్తా అని చెప్పేసి బాధ్యత అని చెప్పి నువ్వు ముసుముసులు నవ్వుతున్నావే మీటింగ్లో? ఏ బాధ్యతతో నడుతున్నావు? ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు అమయంలో పడేస్తున్నారు. గత 40 సంవత్సరాల నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ ప్రాంతంలో ఓడిపోతా వస్తూ ఉంది. నువ్వు ఎల్లారెడ్డికి వచ్చిన ఎల్లారెడ్డిలో ఓడిపోయింది. दिल्ली शराब केस कविता इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की दफ्तर पहुंच गए। बिहार सुप्रीम कानून साज कौंसिल कविता आज पूछताछ के लिए दूसरी मर्तबा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूबरू हाजिर हुई। कविता अपने शौहर अनिल और सीनियर एडवोकेट सोमा भरत कुमार के साथ दिल्ली में चीफ मिनिस्टर केसीआर की रिहाइशगाह से ईडी के दफ्तर के लिए रवाना हुई। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने बीआरएस के कई लीडरों के साथ कविता की हिमायत का इजहार किया। कविता ईडी की तहकीकात के पस मंजर में इतवार की शाम हैदराबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। ये दूसरी बार है जब कविता ईडी की समाअत के सामने पेश हो रही हैं। कविता इस माह की 11 तारीख को पहली बार ईडी की समाअत में हाजिर हुई थी। ईडी ने दोबारा 16 तारीख को समाअत के लिए हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया। इस दौरान ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। इत्तलात है कि इनसे पूछताछ शुरू हो गई है। वाज़ेह है कि पिछली मर्तबा करीब 9 घंटों तक कविता से ईडी के हक्काम ने पूछताछ की थी। बावखार खवातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आलमी बॉक्सर निखत जरीन का जीत का सिलसिला जारी है। बिलमुकाबिल आने वाले बॉक्सर को करारी शिकस्त देने वाली निखत जरीन क्वार्टर फाइनल में हुई दाखिल। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत में जारी आईपीएफ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के तहत बरोज इतवार को मुनक़िदा 50 किलो के बाउट में निखत जरीन 5-0 के फर्क से बौलम रॉ मयास अल्जीरिया पर शानदार जीत हासिल की, जिसकी शुरुआत से ही अपनी ताकत का बेहतरीन मुजाहरा करने वाली आलमी बॉक्सर निखत जरीन ने अपने हरीफ पर तेज धार मुक्कों के जरिए हमला करते हुए काबू पा लिया और दूसरी तरफ 57 किलो के बाउट में मनीषा माउन को 5-0 के फर्क से रहमटीना ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त देते हुए प्री क्वार्टर्स में दाखिल हुई। इसी तरह से बरोज़े पीर को मुनाकिद होने वाले बाउट में लवलीना बोरगोहेन, साक्षी चौधरी, प्रीति मुकाबले में शिरकत करेंगे। अवामी शिकायत को जल्द अज जल्द हल करने के लिए ओहदेदारान पहल करे। प्रजावानी प्रोग्राम में 64 शिकायतें मौसूल। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शिकायत की समाअत। जिले निजामाबाद के कलेक्ट्रेट भी मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के हल के लिए 64 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनिंदगान जो कि जिले के मुख्तलिफ मुकामात से कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, इन्होंने कलेक्टर के साथ एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, DRDO चंदर, CEO ZP गोविंद व निजामाबाद RDO रवि को अपनी शिकायत पेश की। ताहम कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने तमाम हासिल करदा शिकायतों का जायजा लेते हुए हक्काम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दें और इन्हें तेजी के साथ हल करें और शिकायत कुनिंदगान को PR की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला करते हुए मुकम्मल तफसीलात प्रजावानी वेबसाइट पर अपलोड करने की ओहदेदारों को हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। कोंडूर में यौम ख़वातीन के मौके पर ZP चेयरमैन डी विठल राव ने ख़वातीन की तहनीत अमल में लाई। ZP चेयरमैन विठल राव ने कोंडूर में यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन की तहनीत अमल में लाते हुए कहा कि आज एक औरत न सिर्फ अपने ख़ानदान और माली तौर पर सहारा दे सकती है बल्कि अपने आप खड़े होने की ताकत भी रखती है। इसीलिए ख़वातीन की तालीम बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए निहायत ज़रूरी है। ख़ानदान और माशरे की भलाई के लिए ख़वातीन में छुपी हुई सलाहियतों को बाहर लाना है। इसके अलावा माशरे को ख़वातीन के शौर और ख़वातीन की कामयाबियों से आगाह करने के हर एक को सख्त मेहनत करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। बालकोंडा मंडल के नागापुर देहात में क़याम अमल में लाए गए कंटी वेलगू कैंप का कायदीन व ओहदेदारान ने किया इफ्तिताह। बालकोंडा मंडल के नागापुर ग्राम पंचायत दफ्तर में दूसरे मरहले के तहत क़याम अमल में लाए गए कंटी वेलगू कैंप का मुकामी सरपंच P पेदा लिम्बन्ना ने EP नारायणा, MPDO संतोष कुमार, नायब सरपंच महिपाल, हेल्थ ऑफिसर पवन कुमार, डॉक्टर श्रावंती ओहदेदारान के अलावा अवामी नुमाइंदों के हमरा इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर-ए-आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव
मुल्क में कहीं भी न होने वाली कंटी वेलगू कैंप का दूसरे मरहले के तहत क़याम अमल में लाते हुए आंखों के अमराज में मुब्तला अशख़ास की तशख़ीस करते हैं वे ज़रूरतमंद अफराद को मुफ्त चश्मा व अद्वियात की फ़राहमी अमल में लाई जा रही है। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से बसात की खराबी को दूर करने के अज़्म के साथ शुरू किया गया आंखों की रोशनी प्रोग्राम इंसानियत से वाबस्ता एक अजीम प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत इस वक्त दूसरे मरहले में 18 साल से ज़ायद उम्र के हर फर्द की आंखों के मुआयने और ज़रूरतमंदों को अद्वियात और चश्मे तक़सीम करने के लिए वसी पैमाने पर इक़दाम किए गए हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि आई कैंप इन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है जिनके पास हॉस्पिटल्स में जाकर आंखों के मुआयने कराने की सहूलत नहीं है। ऐसे लोग हुकूमत की जानिब से कायम किए गए कंटी वेलगू प्रोग्राम से रुजू होने से कबल अपने साथ अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अपने साथ रखते हुए हुकूमत की जानिब से कायम किए गए कंटी वेलगू प्रोग्राम से इस्तिफादा हासिल करें। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी मंडल जनरल सेक्रेटरी P विद्यासागर, जलालपुर सरपंच G कल्पना, अनिल बस्सापुर सरपंच K कल्याणी, जलालपुर नायब सरपंच J लिम्बा रेड्डी, पंचायत सेक्रेटरी वकास, वार्ड मेंबरान P हेमलता, लक्ष्मी नारायणा, संजीव मुत्तेना, राजेश्वर, खायदीन P लिम्बाद्री, दही तरक्की कमेटी मेंबरान और दीगर ने शिरकत की। ఈరోజు కంటి వెలుగు నాగాపూర్లో స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, అందరికి ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అబౌవ్ 18 ఇయర్స్ వాళ్ళందరినీ వాళ్ళ కళ్ళు బాగున్నా బాగాలేదు అదంతా కాకుండా స్క్రీనింగ్ అన్నమాట మీరు అందరూ వచ్చేలాగా అందరినీ మోటివేట్ చేసి उमेड़ा तालाब में रोजगार तमानियत स्कीम से शुरू करदा सड़क से वाबस्ता कामों का ZP चेयरमैन D विठल राव ने लिया जायजा। ZP चेयरमैन विठल राव ने उमेड़ा तालाब में रोजगार तमानियत स्कीम से शुरू करदा सड़क से वाबस्ता कामों का जायजा लेते हुए ओहदेदारान से मुकम्मल तरीन मालूमात हासिल करते हुए मुख्तलिफ हिदायत जारी के बाद ZP चेयरमैन D विठल राव ने कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इख्तिदार में न होने वाले कई तरक्याती काम तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार में सिर्फ 8 साल अरसे में कई तरक्याती कामों को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाया जा रहा है और इसी तरह से मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत को तरक्की की जानिब गामज़न करने के मकसद के तहत फंड्स की फिलफुल मंजूरी अमल में लाए जाने की वजह से शुरू होने वाली तरक्याती कामों को तेज रफ्तार तरीके से पाए तकमील पर पहुँचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में इनके साथ अवामी नुमाइंदे, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान व दीगर ने शिरकत की। नंदीपेट कुंडूर देहात में क़याम अमल में लाए गए कंटी वेलगू कैंप का ZP चेयरमैन D विठल राव ने किया मुशाहिदा। नंदीपेट कुंडूर देहात में कायम किए गए आंखों की रोशनी कैंप का ZP चेयरमैन विठल राव ने मुशाहिदा करते हुए कहा कि कंटी वेलगू प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की तरफ से शुरू किया गया एक इंतहाई सोचा समझा प्रोग्राम है जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। इन्होंने याद दिलाया कि हुकूमत तेलंगाना ने 2018 में आंखों की रोशनी के लिए एक पहल शुरू की थी ताकि आंखों के इस मसले को ख़त्म किया जाए जो मौजूदा समाज के लिए एक समाजी आर्जा बन चुका है। बताया गया है कि पहले मरहले के तहत रियासत भर में 50 लाख लोगों की आंखों के मुआयने कराए गए। इनमें 3/4 आंखों के अमराज में मुब्तला पाए गए और 50 लाख लोगों को चश्मा फराहम किए गए। इन्होंने कहा कि बीनाई से महरूमी जो कि तमाम जिस्मानी आज़ा में सबसे अहम है, कई मुश्किलात नाकाबिले बयान हैं। ANM आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स घर घर जाकर कंटी वेलगू प्रोग्राम में कंटी वेलगू कैंपों पर इस तशख़ीस की आंखों का मुआयना करने की पहल करना चाहिए जो 18 साल का हो जाए। इन्होंने तमाम बिरादरियों से शिरकत करने और कंटी वेलगू को कामयाब बनाने और अवाम की ज़िंदगियों में रोशनी लाने की अपील की। చేసినప్పుడు 1.5 మందికి ఈ టెస్టులు పరీక్షలు చేయడం జరిగింది। ఇప్పుడేమో ఇంకా ఆ టార్గెట్ ను బద్దలు కొట్టి గ్రౌండ్ లెవెల్ దాకా వెళ్తా ఉన్నాం। డోర్ టు డోర్ వెళ్ళి ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు తీసుకొచ్చి పరీక్షలు చేయించాలి। 18 సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళకు ప్రతి ఒక్కరికి ఈ పరీక్షలు చేయించాలి। మరి ప్రజల వద్దకే కంటి వెలుగు శిబిరాలు పెట్టడం జరిగింది। దీన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్తూ बालकोंडा मंडल के वेनल बी देहात में तिल की फसल मंडल जरई ओहदेदार महेंद्र रेड्डी ने लिया जायजा। बालकोंडा मंडल के वेनल बी देहात में तेल की फसल का मंडल जरई ओहदेदार महेंद्र रेड्डी ने जायजा लेते हुए बताया कि चूसने वाले कीड़ों पर काबू पाने के लिए एसीफिट 300 ग्राम या इमिडाक्लोप्रिड 300 ml को पानी में मिलाकर स्प्रे करें और पत्ता पर लगने वाले कीड़ों से निजात के लिए पहली मर्तबा क्लोरोपेरिपस 500 mc या ट्यूडिकार्ड 100 ग्राम 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इसी तरह से फसल को खराब होने से बचाने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 300 ग्राम या मेटल ऑक्साइड 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में किसानों के अलावा AEO निहारिका ने शिरकत। इंदलवी देहात में कंटी वेलगू प्रोग्राम का मुकामी सरपंच ने किया इफ्तिताह।
इंदलवई देहात में क़याम अमल में लाए गए कंटी वेलगू कैंप का मुकामी सरपंच सत्यम्मा नरसिम्लू ने इफ्तिताह अमल में लाते हुए इन्होंने अवाम से अपील की कि आंखों की रोशनी प्रोग्राम में हर फर्द अपने खानदान के साथ शिरकत करते हुए अपनी आंखों का टेस्ट करवाने वाले ज़रूरतमंदों को मुफ्त चश्मा व अद्वियात की फराहमी अमल में लाई जाएगी। लिहाजा अवाम हुकूमत की जानिब से क़याम अमल में लाए गए आई कैंप से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। जिले महासभा का शहर निज़ामाबाद में जोश खरोश के साथ इनेकाद अमल में लाते हुए नए कमेटी का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाया गया। शहर के द्वारका नगर में वाक़े IFTU ऑफिस में IFTU ज़िले कमेटी के ज़ेर निगरानी में 20 मार्च 2022 को सुबह 11 बजे मीडिया इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए ज़िले सदर व सेक्रेटरी भूमन्नाथ दासू व नए कमेटी की जानिब से करारदाद की वजाहत की गई, जिसमें जिले सदर की हैसियत से बी भूमन्ना, नायब सदर बी सूर्या शिवाजी, जे मुरली, एन साई बाबा, MD ख्वाजा मोइनुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी के तौर पर दासू, सेक्रेटरी की हैसियत से M शिवा कुमार, JP गंगाधर, SK अब्दुल, V पद्मा, खजांची के तौर पर पुरशेट्टी, निगरान का मेम्बरान के तौर पर 16 अफराद को महासभा की जानिब से मुंतखब किया गया और महासभा की जानिब मोदी मजदूरों के खिलाफ 4 लेबर कोड को मनसूख करने का मुतालबा किया गया। इस प्रोग्राम में जिले नायब सदर नीलम साई बाबा, MD ख्वाजा मोइनुद्दीन, सेक्रेटरी M शिवा कुमार, गंगाधर, खायदीन मोहन, T राजू, भारत लक्ष्मण, एलप्पा व दीगर ने शिरकत की। 18న జరిగింది। ఈ యొక్క మహాసభలో బీడీ కార్మికులు, భవన నిర్మాణ కార్మికులు, హమాలీ కార్మికులు, అట్లాగే గ్రామ పంచాయతీ, మున్సిపల్, మోటార్ రంగ కార్మికులు, అన్ని రంగాల కార్మికులు పాల్గొన్నారు। చాలా ఉత్తేజంగా స్ఫూర్తితోని మహాసభలు జరిగినాయి। ఈ మహాసభల సందర్భంగా మహాసభ కొన్ని తీర్మానాలను ఆమోదించింది। नीट PG में 3335 ऑल इंडिया रैंक हासिल करने वाले तालिब इल्म डॉक्टर माड़ा वेटी नीतीश कुमार को तेलंगाना गंगापुत्रा संगम रियासती सदर डॉक्टर नीली रामचंद्र ने शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। नीट PG में 3335वां रैंक से ऑल इंडिया रैंक हासिल करने वाले डॉक्टर माड़ा वेटी नीतीश कुमार को तेलंगाना गंगापुत्रा संगम रियासती सदर डॉक्टर नीली रामचंद्र संगम से मुताल्लिक़ा मेम्बरान ने शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। इस मौके पर तालिब इल्म के वालिदैन माड़ा वेटी, श्याम कुमार, शोभरानी व इनके रिश्तेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर तेलंगाना गंगापुत्रा संगम रियासती सदर डॉक्टर नीली रामचंद्र ने खिताब करते हुए कहा कि गंगापुत्रा संगम की जानिब से तहनीत अमल में लाने तलबा व मुस्तक़बिल में मज़ीद आला ओहदों पर फायज होकर मुल्क का नाम रोशन करने का इजहार किया। తెలంగాణ గంగపుత్ర సంఘం నిజామాబాద్ వారు జాతీయ స్థాయిలో PG నీట్ ర్యాంకింగ్స్లో 3335 ర్యాంకు తోటి ఒక వెలుగిన మాడవేడి నితీష్ కుమార్ గారిని సన్ ఆఫ్ మాడవేడి శ్యామ్ కుమార్ను సన్మానించడము మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది। ఈరోజు मुखफ़्फ़ल किए गए मकान में दाखिल होकर 15 तोले सोने के जेवरात व 30,000 नगद रकम सरखा करने के वाक़े का पुलिस मुलाजमी ने क्लोज टीम डॉग स्क्वाड की मदद से मुकम्मल तफसीलात की हासिल। माकूल मंडल चिकली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले के लक्ष्मी ने मुखफ़्फ़ल किए गए इनके मकान में 15 तोले सोने के जेवरात के अलावा 30,000 नगद रकम सरखा होने के ताल्लुक़ से मुस्तैक़ ने केस से खिताब करते हुए कहा कि चिकली देहात में रिहाइश पजीर रिश्तेदारों में एक शख्स की अचानक फौत होने के ताल्लुक़ से हासिल करदा इत्तला के फौरी बाद रात के औक़ात कार में घर को मुखफ़्फ़ल करते हुए अफराद ख़ानदान को पुरसा देने के मकसद के तहत चिकली देहात को रवाना होने का सारिक़ों ने फ़ायदा उठाया। वो मुखफ़्फ़ल किए गए मकान की खुफर शिकनी करते हुए 15 तोले सोने की जेवरात वो 30,000 नगद रकम लेकर राह फरार इख्तियार करने के ताल्लुक से मुकामी SI यादगिरी गौड के पास शिकायत दर्ज करने के फौरी बाद पुलिस मुलाजमीन ने डॉग स्क्वाड की मदद से जाए मुकाम का मुआयना करते हुए सरखे में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का इजहार किया। గ్రామంలో నిన్న తేదీ 19/3/2023 నాడు రోజున కొట్టాల లక్ష్మి నిన్న వాళ్ళ బంధువులు చనిపోతే, చిట్లిగా బంధువులు చనిపోతే వాళ్ళ ఇంటికి లాకేసి ఇంటికి వెళ్ళింది। ఈరోజు ఉదయం 5 గంటలకు ఇంటికి వచ్చేసరికి తాళం బాలగొట్టినది। లోపలికి వెళ్ళి చూడగా బీరువాల నుండి బంగారు వస్తువు గుర్తెలను దొంగలించుకుని పోయినారు। అందులో బంగారు లాంగ్ చైన్ ఒకటి, మంగళవారం ఒకటి, గాజులు ఒకటి, కొంత నగదును గుర్తెలను దొంగలించుకుపోయినారు। पुतंगल मंडल के सुनकीनी में गैर मौसमी बारिश के सबब जमीन बोझ होने वाली फसलों का TPCC सदर रेवंत रेड्डी ने लिया जायजा।
पोतंगल मंडल के सुनकिनी में गैर मौसमी बारिश के सबब जमीनबोज होने वाले फसलों का पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने जायजा लेते हुए कहा कि गुज़िश्ता दिसंबर में ज़ालाबारी की वजह से मुतासरा फसलों को नुकसान की पाबजाई नहीं की गई और हाल ही में होने वाले तेजधार बारिश की वजह से रियासत में 5 लाख एकड़ पर काश्तकर्दा फसल ज़ाय हो गई। इसी तरह से आम व जवार व दीगर फसलें भी गैर मौसमी बारिश के जद में आने से भारी नुकसान हुआ है। इसीलिए ज़राई व रेवेन्यू अहदेदारान मौज़ूआत में दौरा करते हुए मुतासरा फसलों की तफसीलात से मुताल्लिक़ याददाश्त हुकूमत को रवाना करे। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार में किसानों को बीज खाद नहीं देने का इजहार किया। ज़िले निज़ामाबाद में अखिलती उम्मीदवारों को सामाही मुद्दत के पेशा वाराना रोजगार से मरबूत कोर्सेज के लिए दरख्वास्तें मतलूब। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से ज़िले निज़ामाबाद में माइनॉरिटीज़ तबका से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों को पेशा वाराना रोजगार से मरबूत अकाउंट असिस्टेंट व बुट टेली एंड GST तालीमी काबिलियत मैट्रिक इंटरमीडिएट और फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव वो बुत MBS तालीमी काबिलियत मैट्रिक रखी गई हैं। सामाही कोर्स में दाखिलों के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब है। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ वेलफेयर ऑफिसर D रमेश ने अपने जारी करदा एक सहाफ़ती इलामे में बताया कि उम्र 18 ta 35 साल के दरमियान हो। दरख्वास्त देने के अहल शहरी इलाके के लिए 2 लाख वार दही इलाके के लिए 1,50,000 सालाना आमदनी रखी गई है। हर एक कोर्स के लिए 30 नशिस्तें मुख्तस की गई हैं। ये ट्रेनिंग लिंक एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी निज़ामाबाद के ज़ेरे एहतिमाम दी जाएगी। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ वेलफेयर ऑफिसर निज़ामाबाद जदीद कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स 2nd फ्लोर निज़ामाबाद पर 25 मार्च तक ड्राफ्ट तौर पर दाखिल कर सकते हैं। महाराष्ट्र के खंडार लोहा में इस माह की 26 तारीख को मुनक़िद होने वाले TRS जलसे में शहर में तेलंगाना मॉडल के ताल्लुक से CM KCR अवाम को वाकिफ करवाने का ज़िले TRS सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी ने किया इजहार। रियासत में CM KCR की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही व तरक्याती स्कीमात के ताल्लुक से वजाहत करते हुए डिज़ाइन करदा 16 वीडियो स्क्रीन गाड़ियों का बरोज़ इतवार ज़िले TRS सदर आर्मर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने इफ्तिताह में लाया, जिससे महाराष्ट्र के खंडार लोहा असम्बली हलके के 16 तालुका जात में वाक़े 1600 देहात में तेलंगाना स्कीमात के ताल्लुक से अवाम को वाकिफ करवाने के ताल्लुक से इंतजाम किया गया है। कार्यक्रमामध्ये नांदेड जिल्ह्यातील तमाम किसान बंधू, त्या ठिकाणी सर्वसामान्य गरीब दलित बंधू सर्व त्या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहेत आणि आपल्या तेलंगणा स्टेटमध्ये सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना जो न्याय मिळाला, सर्वसामान्य गरीबाला जो न्याय मिळाला, सर्वसामान्य लेडीजला म्हणजे महिलांना जो न्याय मिळाला, तोच न्याय आपल्या या राज्यामध्ये महाराष्ट्र राज्यामध्ये मिळाला पाहिजे हा दृष्टिकोन समोर ठेवून तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय KCR जी 26 तारखेला आपल्या या कंधार लोहा रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद की ज़ेरे निगरानी में पम्पलेट की कमिश्नर ऑफ पुलिस याना गराजू ने रस्मी इजराई अमल में लाई। रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद की ज़ेरे निगरानी शहर के बरकतपुरा में वाक़ई रोटरी दफ्तर पर मुनक़िदा प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर कमिश्नर ऑफ पुलिस याना गराजू ने रोटरी निज़ामाबाद के साबिक़ा मेंबर श्रीमती डॉक्टर कविता रेड्डी ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद डेयरी क्लिनिक के तहत मंशियात की लत से निजात दिलाते हुए हेल्थ कैंप के ताल्लुक से शौर बेदारी इजलास का क़याम अमल में लाने के साथ साथ इससे निजात हासिल करने के लिए तजावीज़ से मुतालिका पम्पलेट की रस्मी इजराई CP याना गराजू के हाथों अमल में लाएगी। ఏంది ఎట్లా ఏందని చూస్తే వన్ కాంటాక్ట్లో సుమారుగా 1000-1500 మంది ఫోన్ నెంబర్లు ఉన్నాయి మన ఫోన్ బుక్లో. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ లిస్ట్ అవుట్ ఆల్ ద నెంబర్స్, ఒక్కొక్కరిని పిలిపించడం, అందరూ పిలిపించడం వస్తే అందరూ వచ్చి ట్రాప్ అయ్యారు, అంటే ట్రాప్ చేశాను అందరినీ. సో అందరూ వచ్చి వలలో పడ్డారు, చిక్కుకున్నారు. సో అందరినీ పట్టుకొచ్చినంత చూస్తే ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఇన్ ఎంగేజ్ జస్ట్ బిట్వీన్ 20 years, 25 years, 30 years. చూస్తే అందరు మళ్ళీ ఏంటంటే బిలో ద ప్రావర్టీ లైన్లో. शहर के गंज व आचनपल्ली में 40 दिनों तक रोजाना सुबह फजर की नमाज बाकायदगी के साथ पढ़ने वाले बच्चों को बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर के शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा साहिबा ने आयशा फाउंडेशन की जानिब से 81 साइकिलों की फराहमी अमल में लाई। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर के शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा साहिबा ने आयशा फाउंडेशन की जानिब से शहर के गंज व आचनपल्ली में 40 दिनों तक रोजाना सुबह फजर की नमाज बाकायदगी के साथ पढ़ने वाले गरीब मुस्लिम बच्चों में 81 साइकिलों की फराहमी अमल में लाई।
इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। न्यू दिल्ली के ईडी तहकीकात में बीआरएस से मिलती कविता अपने शौहर अनिल व सीनियर एडवोकेट सोमा भरत कुमार के हमरा भी हाजिर। गैर मौसमी बारिश के सबब मुतासरा फसलों को नुकसान की पावजाई की जाए। पतंगल मंडल सिंटिनी में जवार की फसल का टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने लिया जायजा। नांदेड़ में इस माह की 26 तारीख को सीएम केसीआर के जलश्याम के पेश नजर पीयूसी चेयरमैन आगमन एमएलए जीवन रेड्डी हुए मसरूफ। नांदेड़ से ताल्लुक रखने वाले प्रजातंत्र कायदीन के साथ मुनक़िदा इजलास में बोधन एमएलए शकील आमिर ने की शिरकत। मुकफ्फल किए गए मकान में दाखिल होकर 15 तोले सोने के जेवरात व 30,000 नकद रकम सरखा करने के वाक़े का पुलिस मुलाजमीन ने क्लोज टीम डॉग स्क्वाड की मदद से मुकदमे की तफ्तीश। बाबिखार खवातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत स्टार निखत जरीन का जीत का सिलसिला जारी है। बिलमुकाबिल आने वाले बॉक्सर को करारी शिकस्त देने वाली निखत जरीन क्वार्टर मुकाबले में हुई दाखिल। शहर के गंज व आचनपल्ली में 40 दिनों तक रोजाना सुबह फजर की नमाज बाकायदगी के साथ पढ़ने वाले बच्चों को बोधन रुकने संभली शकील आमिर के शरीक हयात मोहतरम आयशा फातिमा ने आयशा फाउंडेशन की जानिब से 81 साइकिलों की फराहमी अमल में लाई। जिले निजामाबाद में अखिलती उम्मीदवारों को सामान्य मुद्दत के पेशा वाराना रोजगार से मरबूत कोर्सेज के लिए दरख्वास्तें मतलूब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।